Okay, so very good evening to all my students. We are going to take a small grammar session, and following the grammar session, we are also going to do a practice of essay, and more importantly, we are also going to do the practice of reading. So the lecture might continue for longer period of time, but I want everybody to remain, present till the last minute of the lecture. And let me tell you, students, you'll be able to gain lots and lots of things. Okay, so we are going to get started with tenses and active passive voice. So although tenses is a very vast chapter, and it might be very difficult to complete the tenses even in one session, probably, or even it may take 2 hours, 3 hours for me to complete the entire tenses. But today the focus is not on tenses. The focus is on active and passive voice. But before we learn active passive voice, you have to have a small session of tenses. So I'll be also taking a small session of tenses before we jump on to active passive voice. Now, first thing first, why is there a need of active passive to learn active passive voice? Can anyone tell me why is there a need to learn active passive voice? Can anyone help me out by writing in the chat box? Why is there a need टू लर्न एक्टिव पैसिव वॉइस? क्यों जरूरत है हमें एक्टिव पैसिव वॉइस लर्न करने की? यस, कोई बताने का कष्ट करेगा? Okay, so it is basically for variation. I can see students coming giving me answers that it is needed so as to bring more variety to the sentences. Very good. Okay, so सबसे बड़ी जरूरत है रीफ्रेजिंग के लिए, पैराफ्रेजिंग जिसको हम कहेंगे, उसके लिए जरूरत पड़ती है. नाउ एक्टिव पैसिव वॉइस की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको राइटिंग टास्क 2 में. To write the first sentence of your essay. It is going to be needed for writing task 1, the first sentence of your graph. It is also needed in speaking, for example, uske liye bhi zarurat padegi. And it is also needed in reading and listening. Now you might wonder that, sir, why active passive voice is needed in listening and reading? Many a times, the sentences are paraphrased. You cannot expect to get the same structure of sentence to come in reading, particularly in true false not given. फॉल्स में शायद अगर एक्टिव वॉइस पैराग्राफ में एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल किया है तो क्वेश्चन में पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया होता है. सो यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस. ओके, but before we jump into that, let us have a small session of what do you mean by active voice and what is a passive voice. In an active sentence the subject performs the action. ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें काफी चीजें आपको क्लैरिटी आ जाएगी जो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है in order to write a grammatically correct essay. Okay, so active voice is something in which the subject performs the action, and in the passive sentence the subject receives the action. ये समझने में ज्यादा दिक्कतें आती है, but I'll explain it to you. Probably you'll be able to understand after few slides. So before we jump on to active voice and passive voice, and before we jump on to tenses, मैं सबसे पहले सबको ये कहना चाहूंगा कि आप वर्ड जो होता है, कोई भी वर्ब जो होते हैं, उसके 4 फॉर्म्स होते हैं. नाउ लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली. द फर्स्ट फॉर्म इज द प्रेजेंट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल कफ है, अगर मैं कफ है तो उसका पास्ट फॉर्म हो जाता है, दिस इज अ प्रेजेंट फॉर्म जिसको हम सिंपल फॉर्म कहेंगे. इसका पास्ट हो जाता है कफ्ड, ईडी लग जाता है. उसका पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है. उसमें भी कोई फर्क नहीं होता, ज्यादातर वर्ड्स में पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल सेम ही रहता है. फॉर एग्जाम्पल कफ, कफ्ड, कफ्ड. और उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगा इट इज गोइंग टू बी कफिंग, COUGHING. वैसे ही डांस है, उसका पास्ट टेंस है डांस, उसका पास्ट पार्टिसिपल भी डांस्ड ही होता है, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इज डांसिंग. So these are the rules. So you can take a screenshot of this slide because these are the rules by which you will be able to make a past form of the verb, past participle form of the verb, and present participle form of the verb. लेकिन काफी ऐसे इरेगुलर वर्ब्स है जिसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा. यू हैव टू मेमोराइज देम. फॉर एग्जांपल अगर एराइज है तो उसका पास्ट फॉर्म एराइज्ड नहीं है, सिर्फ डी लगा के उसका पास्ट फॉर्म नहीं बन जाता, उसका बन जाता है एरोस. पास्ट पार्टिसिपल इज एराइजन, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल जो यहाँ पे नहीं दिया है इट इज गोइंग टू बी एराइजिंग. सिमिलरली अवेक है, क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब्स है, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करते, जो यहाँ पे ऊपर के जो वर्ड्स है उसको फॉलो करते हैं. तो यहाँ पे सारे रूल्स ऐसे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाउ यू कैन मेक पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो ये इसलिए जरूरी है कि इसके बगैर आप टेंसेस का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे.
क्योंकि टेंसेस की अगर बात करें फॉर एग्जांपल कि अगर सिंपल फॉर्म है तो आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैं कल मैंने प्ले किया था तो प्ले का प्लेड बन जाएगा, सो इट इज गोइंग टू बी आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। सो अगर मैं उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस टेंस है तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट एवरी डे। तो इसी के लिए इसका इस्तेमाल और इसका नॉलेज होना जरूरी है। आई विल बी टेकिंग दिस इन डिटेल व्हेन विल बी टेकिंग द टेंसेस, लेकिन मैंने पहले भी बताया टुडे आवर फोकस इज नॉट ऑन टेंसेस, आवर फोकस इज ऑन एक्टिव पैसिव वॉइस। लेकिन क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस भी सीखना है हमें, तो टेंसेस का बेसिक नॉलेज मैं आपको देना चाहूंगा। सो हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स द 4 फॉर्म ऑफ वर्ड्स और वर्ब रादर, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम टेंसेस में करेंगे। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस स्टूडेंट्स? आई वुड लाइक टू हैव फीडबैक फ्रॉम यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I want to have feedback from you. Have you understood this, the 4 forms of words? Everybody, please write in the chat box. Very good. I want answers from you very very quickly so that I can go further. Have you understood? Aksar has only given me the answer. Okay, thank you so much. Okay, अब आगे बढ़ते हैं। Now these are the 12 types of tenses. ये सारे जो tenses होंगे उसमें ये चीजों का इस्तेमाल होगा, इस forms of verb का इस्तेमाल होगा। So you have got 4 types of, 3 aspects of tenses, 3 types of tenses, and again एक type के 4 parts होते हैं। So if I take present, you have got present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous। वैसे ही future के 4 प्रकार है and past के भी 4 प्रकार है। आपको इसमें इन सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो यू विल बी, जैसे कि अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसकी फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन सिंपल फॉर्म, तो आपको पता चल जाता है कि प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अगर पास्ट टेंस की बात है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म। तो उसी के लिए इस चीज का इस्तेमाल करना जरूरी है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल टेबल, जो अगर फॉर एग्जांपल ये टेबल जो है ये आपको समझना जरूरी है। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ईट का। ईट का पास्ट फॉर्म होगा एट, उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा ईटन, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा ईटिंग। सो यही चीज का इस्तेमाल करके ये जो है स्लाइड में हर बच्चों को कहता हूं कि ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भविष्य में भी इन द फ्यूचर ऑल्सो इफ यू वांट टू क्लियर योर टेंसेस, देन दिस स्लाइड इज गोइंग टू बी हेल्पिंग यू लाइक एनीथिंग। So I want you people, each and every one of you, to please take a screenshot of this slide, because on the basis of this we are going to go further. If you have taken the screenshot, I'll go further. So let me explain you in a very brief कि अगर प्रेजेंट की बात करें तो हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेना चाहेंगे। अगर मैं पिज्जा हर रोज खाता हूं, सो मैं कहना चाहूंगा प्रेजेंट टेंस इज यूटिलाइज्ड टू एक्सप्रेस माय हैबिट्स, रूटीन्स एंड फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल आई ईट पिज्जा एवरी डे, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल किया है। मैं अभी पिज्जा खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग पिज्जा राइट नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज्जा, मैंने अभी पिज्जा खत्म कर दिया है, मैं इस्तेमाल करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने थर्ड फॉर्म मतलब के थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है। और अगर मैं 2 घंटों से पिज्जा खा रहा हूं तो मैं कहूंगा आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 hours। I hope this is clear to you. As I have told you before, I'm not going to go deep into the tenses. This part is going to be taken by me afterwards, या तो फिर दूसरे सेशन में लूंगा। ओके, अगर मैंने कल पिज्जा खा लिया था, I ate pizza yesterday, आप जब आए थे तब मैं पिज्जा खा रहा था, I was eating pizza when you arrived, past continuous. I had eaten all of the pizza when you arrived, past perfect. आप जब कल आए थे मैंने पूरा पिज्जा खा लिया था। मैं 2 घंटों से पिज्जा खा रहा था जब आप आए थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैड बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 hours व्हेन यू अराइव्ड। फ्यूचर की बात करें, मैं कल पिज्जा खाने वाला हूं, सिंपल फ्यूचर या तो फ्यूचर सिंपल, आई विल ईट पिज्जा टुमारो। आई विल बी ईटिंग पिज्जा व्हेन यू अराइव, कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस। आप जब कल आओगे तब मैं पिज्जा खा रहा हूंगा, फ्यूचर परफेक्ट। आई विल हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज्जा बाय द टाइम यू अराइव। आप देख सकते हो सेंटेंस का फॉर्मेशन, आई विल हैव ईटन, मैंने सारा पिज्जा खा लिया होगा जब आप कल आओगे। और प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई विल हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 hours व्हेन यू अराइव, मैं 2 घंटों से पिज्जा खा रहा हूंगा जब आप कल आओगे। यहाँ पे एक चीज का गौर करना जरूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल तब होता है जब आपको आवर्स या तो फिर जब से आपने स्टार्ट की एक्टिविटी का ड्यूरेशन बताना होता है।
तो काफी ऐसा बच्चे बोलते हैं कि सर मैं अगर आई एम ईटिंग पिज्जा फॉर 2 आवर्स बोलूं तो क्या वो ठीक नहीं है, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आपको ये दिखाना है, टाइम ड्यूरेशन बताना है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग IELTS सिंस लास्ट 15 मिनट्स, तो ये सिंस फॉर 15 मिनट्स, तो मैंने ड्यूरेशन का इस्तेमाल किया, तो मैं इस्तेमाल करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो आप देख सकते हो तीनों तीन में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैंने तीनों तीन केसेस में अवधि का इस्तेमाल किया है। आई यूटिलाइज ड्यूरेशन, यू कैन सी ओवर हियर 2 आवर्स, 2 आवर्स और 2 आवर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई हैव यूटिलाइज डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जैसे कि सिंपल फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब जो मैं करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू फोकस नाउ ऑन एक्टिव पैसिव वॉइस। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का ही इस्तेमाल करोगे। आई रिपीट, इन वर्ब, जैसे कि 12 टेंसेस जो है उसमें हमने 4 प्रकार के वर्ड्स का इस्तेमाल किया। इस पे जरा गौर करते हैं। इसका यू कैन सी आई यूटिलाइज प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, past participle and present participle, but when it comes to passive voice, मैं सिर्फ और सिर्फ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सिर्फ और सिर्फ past participle का ही इस्तेमाल करूंगा। सो नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, when I convert active voice to passive voice, it is important to understand that I am only going to utilize past participle form of verb. Is it getting clear or not? First and the foremost thing, is this clear or not, everybody? When I am going to utilize, or when I am going to make passive voice, I am only going to utilize past participle form of the verb. तो ये रूल नंबर 1 होगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जहां पे भी मैं पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करता हूं, तो मैं ये टेबल का इस चीज का इस्तेमाल करूंगा, या तो फिर इस चीज का इस्तेमाल करूंगा अगर इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है तो। ये नियम नंबर 1। दूसरा नियम जो है कि कितने टेंसेस है यहाँ पे, कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी टेंसेस आर देयर ओवर हियर? How many tenses are there? Write in the chat box. 12 tenses. Very good. I can see, you can say that there are 12 tenses. Isn't getting clear? Very good. You can see, you can count. But अब मुझे बताने का कष्ट करेंगे, इसमें से कौन से टेंसेस का मैं पैसिव वॉइस बना पाऊंगा? Will I be able to make passive voice of all these 12 types of tenses or 12 tenses? Can you tell me, help me out? Will I be able to form passive voice of all the type of tenses? Help me out. कितने टेंसेस है? 12 टेंसेस है। पहले तो मुझे बताओ कितने टेंसेस का मैं पैसिव वॉइस कर पाऊंगा। मुझे नंबर बताओ, 12 टेंसेस जो है उसमें से कितने नंबर ऑफ टेंसेस का मैं पैसिव वॉइस कर पाऊंगा? एक ने आंसर दिया 3, बट दैट आंसर इज नॉट करेक्ट। आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। गिव मी नंबर्स। आरती इज गिविंग टेलिंग मी 10 और 8। नहीं, 6 भी नहीं। अभी तक गलत आंसर आया है, एक भी आंसर गलत, सारे के सारे आंसर गलत। कोई बोल रहा है 6, कोई बोल रहा है 5, कोई बोल रहा है 12, लेकिन सारे के सारे आंसर्स गलत है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि व्हेन यू से आई वांट टू मेक टेंसेस 12, अभी भी आंसर नहीं आ रहा है। आई एम क्वाइट सरप्राइज दैट नन ऑफ यू हैज गिवन मी द करेक्ट आंसर। नो, आई कैन स्टिल नॉट सी। सिर्फ एक ही आंसर आया, आदित्य जी का सही आंसर आया है। मैं बताना चाहूंगा इसमें से जो 12 टाइप्स है, 12 टेंसेस है, उसमें से अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं तो यहां पे ध्यान दे रहे, 1, 2, 3, मतलब सिंपल फॉर्म के सारे मैं पैसिव वॉइस बना पाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, इनमें से किसी भी कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में से किसी भी टेंस का मैं पैसिव वॉइस नहीं बना पाऊंगा। अगेन सर, तो मैं और किसका पैसिव वॉइस बना पाऊंगा? परफेक्ट के सारे टेंसेस का मैं पैसिव वॉइस बना पाऊंगा। इज इट गेटिंग क्लियर? और सर कंटिन्यूअस में कितने टेंसेस का मैं पैसिव वॉइस बना पाऊंगा? तो उसमें सिर्फ ये 2, मतलब इसका भी मैं पैसिव वॉइस नहीं बना पाऊंगा। तो नाउ कैन यू टेल मी विच टेंसेस आई कुड मेक द पैसिव वॉइस ऑफ? नाउ कैन यू कैलकुलेट स्टूडेंट्स? कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी मैं किसके पैसिव टेंसेस? 8 ही। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ 8 ही टेंसेस के मैं पैसिव वॉइस बना पाऊंगा, और वो जो है वो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिंपल,
परफेक्ट के तीनों तीन और कंटिन्यूअस के दो, पास्ट और परफेक्ट, फ्यूचर का नहीं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में से किसी भी टेंस का मैं पैसिव वॉइस नहीं बना पाऊंगा। सो ये चीज का इंफॉर्मेशन लेके हम आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर टू रूल्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नंबर वन, रूल नंबर वन, एक क्या था रूल नंबर वन? कैन यू हेल्प मी आउट? व्हाट वाज रूल नंबर वन? राइट इन द चैट बॉक्स। रूल नंबर वन क्या था? पैसिव वॉइस सीखने के लिए दो रूल का इस्तेमाल जरूरी है। नंबर वन, रूल का इस्तेमाल, रूल नंबर वन। वेरी गुड, अक्षय हैज गिवन मी द राइट आंसर। V3 फॉर्म द वर्ब। मैं सारे के सारे जो आठ प्रकार जो है पैसिव वॉइस के, उसमें मैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल करूंगा। नंबर वन, रूल नंबर वन। और रूल नंबर टू जो है, उसमें याद रखना है कि मैं सिर्फ आठ और सिर्फ आठ जो आपके स्क्रीन के सामने हैं, उसी वर्ब्स के मैं टेंसेस बना पाऊंगा पैसिव। ओके, अब रूल नंबर थ्री छोटा सा आसान है। अगर मैं कंटिन्यूअस टेंस जो है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो है, तो अगर पैसिव वॉइस में मैं कन्वर्ट करूंगा तो BEING लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कैन यू हेल्प मी आउट स्टूडेंट्स? व्हाट इज गोइंग टू बी कमिंग इन पैसिव वॉइस? कंटिन्यूअस है तो क्या लगाऊंगा मैं? BEING, बीइंग। इज इट गेटिंग क्लियर? और अगर परफेक्ट है, जिनके तीनों तीन टेंसेस के मैं पैसिव वॉइस बना सकूंगा, तो उसमें इस्तेमाल करूंगा BEEN। याद रहेगा आपको? परफेक्ट है तो कौन से वर्ड का इस्तेमाल करूंगा? बीन, BEEN। और अगर कंटिन्यूअस है तो BEING। अंडरस्टूड नाउ? और अगर ये जो तीन है तो आपको याद रखना पड़ेगा, प्रेजेंट है तो इज एम आर हो जाएगा, और पास्ट है तो वॉज और वेर हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस हम ज्यादा करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेट मी नाउ स्टार्ट विद द प्रैक्टिस पार्ट। ओके, इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। कैन यू नाउ कन्वर्ट दिस इनटू पैसिव वॉइस? एवरीबॉडी, आई वांट आंसर फ्रॉम यू। आई ईट पिज्जा एवरी डे। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। आई वांट यू पीपल। चलिए, हु इज गोइंग टू हेल्प मी आउट? या कैन यू टेल मी एग्जैक्टली? या पहले तो हम लोग बात करेंगे, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। याद रहेगा आपको मैंने जो किया था? वो याद रहना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो आपको BEING का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर परफेक्ट है तो बीन का इस्तेमाल करोगे। सिंपल है, तो यहाँ पे जरा गौर कीजिए। इसमें कोई भी चीज आपको ऐड नहीं करनी है। डोंट ट्राई टू ऐड एनीथिंग। लेट मी सी हु गेट्स इट ऑल करेक्ट। तो इसका आंसर है पिज्जा इज ईटन बाय मी एवरी डे। तो ये पिज्जा सब्जेक्ट, ये जो कॉम्प्लीमेंट में था वो सब्जेक्ट बन गया। ईट का ईटन हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि वर्ब अगर है तो वो सिर्फ थर्ड फॉर्म का लगेगा, ईटन हो जाएगा। क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म है तो ईज आ जाएगा, और आई का बाय भी बन जाएगा। एवरीडे तो एवरीडे ही रहेगा। सो इसका पैसिव वॉइस है पिज्जा इज ईटन बाय मी एवरी डे। अंडरस्टूड और नॉट एवरीबॉडी? इज इट क्लियर और नॉट? संकेत, you came late, so I mean I'll try to make sure। सिंपल पास की बात करते हैं। सिंपल पास की इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आई बिलीव दैट इफ एट ऑल यू वांट टू रिवाइज दिस, मैं इसका रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ। सो यू डोंट नीड टू वरी इफ यू लॉस्ट एनीथिंग, डोंट वरी। ओके, सिंपल पास्ट की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट सिंपल पास्ट। आई एट पिज्जा यस्टरडे। कैन यू बेसिकली convert this into passive voice? Everybody, can you convert this into passive voice? Convert this into passive voice. I can see a lot of answers coming. So now check the answers. पहले try करो। पिज्जा को, पिज्जा जो उसके फॉर्म में है उसको कन्वर्ट कर दो। संकेत ये गलत किया है, कहाँ चला गया? पास्ट है तो क्या हो जाएगा? ओके, इसका आंसर है पिज्जा वॉज ईटन बाय मी यस्टरडे। अगर आप पैसिव वॉइस में करते हो कन्वर्ट, तो याद रखना है कि यस्टरडे का यस्टरडे रखना है। कोई भी चीज आपको चेंज नहीं करनी है। सो आंसर इज गोइंग टू बी पिज्जा वॉज ईटन। थर्ड फॉर्म में लगेगा। आपने देखा थर्ड फॉर्म ही रखा है। अब इसका बताओ सिंपल फॉर्म, आई विल ईट पिज्जा टुमारो। इसका पैसिव बनाओ। याद रखना है कि वर्ब का तो तीसरा फॉर्म ही लगेगा। इट इज ओनली गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बताओ क्या आंसर आएगा? Yes, I can see a lot of answers coming, but I want the correct answer. Reach has given me the correct answer. iPhone has given me the correct answer. Very good. I can see a lot of right answers coming. इसका आंसर क्या आएगा? ट्राई करिए, आप सब लोग पहले ट्राई करें।
तो ट्राई करेंगे, पहले तो पिज्जा बन जाएगा, विल का विल ही रहेगा, मैंने पहले भी बताया था, बी आ जाएगा क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, तो पिज्जा इसका आंसर होगा, पिज्जा विल बी ईटन बाय मी, पिज्जा विल बी ईटन बाय मी टुमारो। याद रखना है कि ये टुमारो है, उसका टुमारो ही रखना है। एक चीज का यहाँ पे गौर करना है कि अगर आई ईट पिज्जा एवरीडे, उसके बदले अगर होता, फॉर एग्जाम्पल लेट मी सी, अगर ये होता तो क्या करते आप, अब बताइए, टेल मी द आंसर। इसका पैसिव कीजिए, आई वांट यू टू कन्वर्ट दिस इनटू पैसिव। यस, कन्वर्ट दिस इनटू पैसिव। वेरी गुड, आई कैन सी लॉट ऑफ आंसर्स कमिंग। तो ये याद रखना है, वेरी गुड, ये याद रखना है। एक चीज यहाँ पे गौर कीजिए कि जब आप पिज्जा जो है, जो ऑब्जेक्ट पार्ट में है, उसको आप जब सब्जेक्ट पार्ट बना रहे हो, तो एक चीज का गौर करना है, तो वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसका ध्यान रखना है आपको। जैसे कि यहाँ पे आपने चेंज किया, जो हमारा पहला सेंटेंस था उसमें पिज्जा का पिज्जा सिंगुलर था, तो यहाँ पे मैंने ईज का किया था, लेकिन क्योंकि ये जो सेंटेंस है जो मैंने यहाँ पे साइड में राइट हैंड साइड पे लिखा है, उसमें पिज्जा प्लूरल है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आप ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, पिज्जाज इज ईटन बाय मी यस एवरी डे, तो ये गलत हो जाएगा। तो व्हेन यू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट पार्ट टू सब्जेक्ट पार्ट, मेक श्योर वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, एंड देयरफॉर यू नीड टू चेंज द वर्ब अकॉर्डिंगली। तो आंसर होगा इसका, पिज्जाज आर ईटन बाय मी, सॉरी, पिज्जाज आर ईटन बाय मी एवरी डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज क्लियर नाउ, सिंपल फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर क्लियर हो गया ये। You can take a screenshot of this once again if you want to refer to this in the future. Recording तो मैं वैसे भी देने वाला हूँ। चलिए, present continuous, I am eating pizza right now. Try to convert this into passive voice. Try to convert this into passive voice. Very good, I can see answers coming. पहले तो ये समझना है कि पहला ये देखो क्या है, पिज्जा है, पिज्जाज नहीं है, पिज्जा ही है। क्या करना है, कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या ऐड करेंगे हम लोग, बी ई आई एन जी, बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, हाँ या ना। तो इसका आंसर होगा, पिज्जा इज बीइंग ईटन बाय मी राइट नाउ। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। कौन से वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ईट। सबका आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि पैसिव में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगता है, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूअस है तो बीइंग आ जाएगा। सो आंसर इज गोइंग टू बी, पिज्जा इज बीइंग ईटन बाय मी राइट नाउ। अगर ऐसा होता तो आई एम ईटिंग पिज्जाज राइट नाउ, तो क्या आंसर होता, आई एम ईटिंग पिज्जाज राइट नाउ, व्हाट वुड हैव बीन द आंसर देन? राइट इन द चैट बॉक्स। अगर आई एम ईटिंग पिज्जाज राइट नाउ तो क्या आंसर होता, आर बीइंग हो जाता। वेरी गुड, सो आंसर वुड हैव बीन, पिज्जाज आर बीइंग ईटन बाय मी। ये लगता बहुत सिंपल है, लेकिन आप ये सोच नहीं सकते कि इसकी कितनी अहमियत है। व्हेन यू राइट आईएलटीएस ऐसे, तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी, आप एक भी गलती नहीं करोगे। पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज ईटिंग पिज्जा व्हेन यू अराइव्ड। ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू पैसिव वॉइस। Try to convert this into passive voice. Past continuous है। मैं देख रहा हूँ आंसर्स नहीं आ रहे, मतलब गड़बड़ हो रही है। Okay, Dhaval has given me the right answer. Aditya has also given me the right answer. So आंसर इसका क्या होगा, पिज्जा सब्जेक्ट में चला जाएगा। एक भी चीज आपको चेंज नहीं करनी है, सॉरी, पिज्जा was being eaten by me when you arrived. Understood everybody? जब कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, बीइंग। संकेत गलत है, बीइंग हो जाएगा, BEING, बीइंग। जब कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हो, उसको पैसिव में करते हो, तो बीइंग हो जाएगा। और अगर इसका ऐसा है तो आई वॉज ईटिंग पिज्जाज, अगर ऐसा है तो आई वॉज ईटिंग पिज्जाज व्हेन यू अराइव्ड, तो क्या क्या हो जाएगा पैसिव में, पैसिव में क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखता हूं आई वॉज ईटिंग पिज्जाज व्हेन यू अराइव्ड, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? इसका आंसर होगा, पिज्जाज वर बीइंग ईटन बाय मी व्हेन यू अराइव्ड। अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ते हैं।
फ्यूचर का क्या होगा, चलो बोलो तो फ्यूचर का क्या होगा। आई ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू फॉर एग्जांपल। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये फ्यूचर प्रेजेंट आई मीन फ्यूचर कंटिन्यूअस है, सॉरी आई विल हैव बीन। चलो बताओ। ओके ये याद रखना है आपको, मैंने पहले भी समझाया था कि कंटिन्यूअस में दो ही प्रकार के, दो ही टेंसेस का फॉर एग्जांपल आप पैसिव वॉइस बना पाओगे। यू कैन ओनली मेक पैसिव वॉइस ऑफ टू कंटिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। आप फ्यूचर टेंस का बना ही नहीं पाओगे, वो गलत है। सो प्लीज डोंट ट्राई टू मेक इट। ओके आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ईटन पिज्जा। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्या आंसर होगा, क्या करना है पहले मुझे इतना बताओ, क्या करेंगे, रूल क्या है परफेक्ट टेंसेस में, क्या रूल है, कौन से वर्ड का इस्तेमाल होगा। कैन एनीवन टेल मी विच वर्ड आर यू गोइंग टू यूटिलाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी विच वर्ड आर यू गोइंग टू यूटिलाइज। बीन, बी डबल ई एन। और अगर कंटिन्यूस है तो कौन से वर्ड का इस्तेमाल होगा, कंटिन्यूस है तो, कंटिन्यूस है तो बीइंग, परफेक्ट है तो बीन। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव ईटन पिज्जा, बताइए आंसर क्या होगा। यस व्हाट इज द आंसर। पिज्जा, जिनल पिज्जा एक अकेला है, वो नहीं आएगा, हैज ही आएगा, क्योंकि पिज्जा सिंगुलर है। तो पिज्जा हैज बीन ईटन बाय मी। आपने याद रखना है, मैंने देखा काफी बच्चे पिज्जा के बाद हैव कर रहे हैं। अगर आई हैव ईटन पिज्जाज है तो बात अलग है, तो प्लूरल होगा। अंडरस्टूड। सो पिज्जा हैज बीन ईटन बाय मी। चलिए आगे बढ़ते, पास्ट परफेक्ट। आई हैड ईटन पिज्जा व्हेन यू अराइव्ड, कीजिए उसका पैसिव। सिंपल सा है, वर्ब तो ईटन ही होगा, आपको पता है। क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन। हेड का हेड ही रहेगा, उसके चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर इज गोइंग टू बी पिज्जा हैड बीन ईटन बाय मी। आगे लिखना होगा व्हेन यू अराइव्ड, मैंने लिखा नहीं है वो गलत है, व्हेन यू अराइव्ड लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर। ओके फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव ईटन पिज्जा बाय द टाइम यू अराइव। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आंसर होगा फ्यूचर परफेक्ट। विल का वही विल ही रहेगा। यस वेरी गुड, आई कैन सी लॉट ऑफ गुड आंसर्स कमिंग। आंसर क्या होगा इसका, पिज्जा विल हैव बीन ईटन बाय मी बाय द टाइम यू अराइव। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। इज इट क्लियर, इसका मैं चाहूंगा आप प्रैक्टिस ज्यादा करो। आई वांट यू पीपल टू डू मोर प्रैक्टिस ऑन दिस। ये स्लाइड जो है, ये जो लेक्चर है, इसको वापस देखो, तो उस पे पैसिव वॉइस का काफी नॉलेज आ जाएगा। अंडरस्टूड नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यू अंडरस्टूड द बेसिक ऑफ पैसिव वॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबॉडी, यस और नो। पैसिव, तीन चीजों का ध्यान रखना है आपको, यू नीड टू रिमेंबर थ्री थिंग्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, के पैसिव वॉइस आर्टी टेंस के होंगे, सारे में के सारे में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा, कंटिन्यूअस है तो बीइंग का इस्तेमाल होगा, परफेक्ट है तो बीन का इस्तेमाल होगा। चलिए अब आगे जाके प्रैक्टिस करते हैं। आई वॉन्ट यू पीपल टू टेल मी कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए टेल मी, यस टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू पैसिव वॉइस। बिल्कुल परफेक्ट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। और इसको आई वांट यू पीपल, इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में ले रहा हूँ। यस व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन, वेरी गुड आदित्य। चलिए पहले क्या करेंगे, तो पहले तो अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉपर्टी तो वही रहेगी, इसको सब्जेक्ट पार्ट में दे दो। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, इजंट इट, इट इज अ प्रेजेंट टेंस। सो आंसर क्या आएगा, अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉपर्टी, एक्टिव पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्ट्रॉय का क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म है तो ईज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ईज डिस्ट्रॉयड। वर्क का तो थर्ड फॉर्म ही लगेगा, बाय लगेगा, बाय हरिकंस एज ईयर।
each year. Is it getting clear? Hurricanes destroy great deal of property each year. तो a great deal of property ये subject बन जाएगा, क्योंकि property है तो singular है. is verb का third form, destroyed by hurricanes each year. Is it getting clear everybody? Are you able to understand this, students? धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो क्लैरिटी आ जाएगी. ओके आगे बढ़ते हैं. दिस इज दूसरा. जस्ट अ मिनट. चलिए अब बताइए मुझे. टेल मी द आंसर. चलो क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा बताओ मुझे. व्हाट इज आंसर ऑफ दिस वन? पहले तो ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है? ये टेंस यहाँ पे गलत है. सी यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है आपको, ये गलत है. दिस इज पास्ट टेंस. दिस इज पास्ट टेंस, तो यहाँ पे पास्ट लिखो, PAST. अब जाके करो. पहले क्या करेंगे इसको? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सो आंसर इज गोइंग टू बी दिस. 30 हाउसेस उसमें आ जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म है तो, लेकिन प्लूरल है. दिस इज प्लूरल, तो क्या होगा? 30 हाउसेस वर डिस्ट्रॉयड. प्लूरल होगा. अगर एक ही हाउस होता तो वॉज होता. वर डिस्ट्रॉयड का तो डिस्ट्रॉयड ही रहेगा, आपको पता है. बाय दी टोर्नाडो, बाय बीच में आ जाता है, पैसिव में करते हो तो बाय आ जाता है. और दी टोर्नाडो है तो दी टोर्नाडो ही लिखो. डोंट ट्राई टू रिमूव दी. काफी बच्चे ऐसा करते हैं कि दी निकाल देते हैं, तो दी नहीं निकालना है आपको. आंसर वही का वही रहेगा. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके आगे बढ़ते हैं. प्रोग्रेसिव में क्या करना है? व्हाट आर यू गोइंग टू डू प्रोग्रेसिव में? चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए, कमिटी इज कंसिडरिंग several new proposals. Try to convert this into passive voice. नीचे के फॉर्मूला का इस्तेमाल भी कर सकते हो आप. यस. रीचा गलत है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू यूटिलाइज बीइंग. BEING. बीइंग नहीं लगेगा क्या? या धवल, यू आर राइट. पॉसिबल है. क्या करेंगे? सेवरल न्यू प्रपोजल्स. और ईज का क्या हो जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा ईज का? सो आंसर इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे. सेवरल न्यू प्रपोजल्स. ये रहा आंसर इसका. several new proposals are being considered. several new proposals, ये सब्जेक्ट पार्ट में चला गया, क्योंकि proposals प्लूरल है तो आर हो जाएगा. क्योंकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो BEING बीइंग लग जाएगा. कंसिडरिंग जो है वो तो मैंने बताया था कि कोई भी पैसिव वॉइस में आप ED फॉर्म का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करोगे तो कंसिडर्ड हो जाएगा बाय द कमिटी. इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबॉडी? चलिए दो ही और करने हैं हमें, डोंट वरी. चलिए इसका इस्तेमाल कीजिए. द कमिटी वॉज कंसिडरिंग सेवरल न्यू प्रपोजल्स. चलो पहले तो प्लूरल बनाओ. प्लीज राइट इनटू प्लूरल. वेरी गुड अक्षय. तो पहले क्या करना है? यहां से लो. क्या करेंगे हम लोग? सेवरल न्यू प्रपोजल्स. अब क्या करना है? प्लूरल है और तो प्लूरल हो जाएगा तो वर आ जाएगा. और पास्ट प्रेजेंट पास्ट प्रोग्रेसिव है तो बीइंग कंसीडर्ड बाय द कमिटी. इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबॉडी? सो ये हो जाएगा आपका उसका पैसिव वॉइस. दिस इज गोइंग टू बी योर पैसिव वॉइस. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? several new proposals were being considered by the committee. I hope this is clear to everybody. सबको पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा? Are you able to understand? I know it is a difficult topic to understand, but still I am trying my level best to make sure that you understand everything. Clear? पता चल रहा है सबको? Write in the chat box. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. सिर्फ लास्ट दो.
द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट, बनाओ इसका क्या, पहले मुझे बताओ कौन सा टेंस है ये, विच टेंस इज दिस। अब पता चला आपको कि पैसिव वॉइस सीखने के लिए आपको टेंस का नॉलेज क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपको टेंसेस का नॉलेज होगा, इफ यू हैव गॉट द नॉलेज ऑफ टेंसेस, तभी आपको पता चलेगा ना, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में नियम ये है कि मुझे बीन लगाना पड़ेगा, BEEN, तो वैसे करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके चलो इसका पैसिव बनाइए। पहले क्या होगा, सब्जेक्ट बनाओ, क्या होगा सब्जेक्ट, क्या है, वेरी गुड, आंसर इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। क्या होगा इसका आंसर, सम न्यू इक्विपमेंट, हैज का हैज ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट है तो बीन लग जाएगा, बीन ऑर्डर्ड बाय द कंपनी। इज इट गेटिंग, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल राइट, ये हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट। ओके क्लियर हो गया, तब सम न्यू इक्विपमेंट हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द कंपनी। अगर यहाँ पे इक्विपमेंट्स होता तो क्या होता, सम न्यू इक्विपमेंट्स हैव बीन ऑर्डर्ड बाय द कंपनी। ओके लास्ट करते हैं, द लास्ट वन, चलो try to convert this into passive voice. Very good. Who is iPhone? Very good, Dhaval. Very nice. Okay. So क्या आंसर होगा, आदित्य? वेरी गुड। हैज नहीं होगा आदित्य, हैज नहीं होगा, ये पास का है, इट इज पास परफेक्ट, तो हेड का हेड ही होगा। ओके सो इस द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी दिस वन, some new equipment had been ordered by the company before the strike begins. Is it getting clear? So some new equipment had been ordered by the company before the strike began. Okay, up sirf last. Is it clear everybody? Are you able to understand? And I want you people to just have a look at the video once again so as to have the clear cut understanding model. Okay, बस इतना ही करते हैं। Any questions, any doubts? आज ज्यादा नहीं करना है, this is enough for grammar. क्लियर हो गया, एक्टिव पैसिव वर्ब्स का क्लैरिटी आया थोड़ा थोड़ा, इज इट क्लियर नाउ एवरीबॉडी? You understood active passive voice. I am now going to take a new session. So I hope this is clear to you. 12 tenses है, काफी knowledge, मतलब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, you have to go through it once again so as to have a clear grasp. लेकिन इसका importance इसलिए है कि आप ये करोगे तो आपको फायदा इसलिए रहेगा कि आप पैराफ्रेजिंग अच्छी तरह से कर पाओगे। अंडरस्टूड? ओके नाउ लेट अस मूव अहेड, नया सेशन लेते हैं। आई एम गोइंग टू टेक अ स्मॉल एसे, एग्री डिसएग्री वाला। या कैन यू सी अ न्यू स्लाइड, न्यू शेयर? आप देख सकते हो न्यू शेयर एवरीबॉडी? कैन यू सी अ न्यू शेयर? ओके फाइन। नाउ आई वांट समबडी टू रीड इट आउट फॉर मी। हु इज गोइंग टू हेल्प मी आउट रीडिंग? कौन हेल्प करेगा मुझे? कैन एनीवन हेल्प मी आउट रीडिंग द थिंग्स? देखना है पीछे कि पीछे आवाज ना हो। या कृति विल हेल्प मी आउट। कृति पीछे आवाज नहीं है ना? लेट अस सी। You can unmute yourself. Yeah. Yes. Okay. Yeah. So we are going to discuss today agree disagree lessons for IELTS. One of the most common types of IELTS that comes on the examination. In fact, let me tell you students that agree disagree वाला जो ऐसे है वो इतना कॉमन है कि कोई भी आप एग्जाम ले लो, चाहे आप IELTS ले लो, वी ऑल्सो टीच PT, वी ऑल्सो यूज टू टीच TOEFL इन द पास्ट, आप GMAT ले लो, GRE ले लो, ले लो, agree disagree essay is so common that it usually comes on every examination. Okay, so IELTS में आपको पता होगा कि agree disagree के लिए आपको इसका नॉलेज लेना जरूरी है। कृति, can you start reading? This lesson will teach you how to
write agree or disagree, or opinion eyelets task that could get you a higher score. Agree or disagree question types are one of the most common on the IELTS writing paper, so it's important that you learn how to write them properly. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ IELTS ऐसे इज एग्री डिसएग्री, और इसी के लिए इसका नॉलेज होना जरूरी है. ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. प्लीज गो हेड. Some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programs. For example, working for a charity, improving the neighborhood, or teaching sports to younger children. To what extent do you agree or disagree? How to write this type of essay? सो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एग्री डिसएग्री वाला ऐसे, ये जो प्रॉम्प्ट नीचे दिख रहा है आपको, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, इससे आपको पता चलेगा कि ये एग्री डिसएग्री वाला ऐसे है. मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि सारे जो ऐसेज है उसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है. सो यू नीड टू प्रिसाइसली नो हाउ टू राइट एन एग्री डिसएग्री ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके फाइन. सर मुझे कैसे पता चलेगा कि और कोई क्वेश्चन मार्क्स है जिससे पता चलेगा कि एग्री डिसएग्री वाला ऐसे है? तो मैंने पहले भी बताया था कि डायरेक्टली ऐसा लिखा जा सकता है कि वेदर यू एग्री और डिसएग्री, लेकिन यही अकेला नहीं है. आप नीचे के पॉइंट्स भी आप देख सकते हो जिससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये एग्री डिसएग्री वाला ऐसे है. सो कैन यू रीड दिस, वेयर माय कर्सर इज, कृति? I couldn't see your Yeah, cursor. now Yes, I know. Yeah. To what extent do you agree or disagree? What is your opinion? Do you agree or disagree? To what extent do you agree? To which opinion do you agree or disagree? ओके, तो ये जो वर्ड्स, ये जो सेंटेंसेस है, इससे आपको पता चलेगा कि ये एग्री डिसएग्री वाला ऐसे है. सो यू डोंट नीड टू ओनली रिलाई ऑन वन सेंटेंस, बट दिस आर पॉसिबली द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय व्हिच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये एग्री डिसएग्री वाला ऐसे है. तो सर इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? व्हाट कैन वी पॉसिबली डू? यस, कैन यू रीड, कृति? Yes. You can write this essay in 4 different ways. You can completely agree, 4 paragraphs. You can completely disagree. You can mostly agree. You can mostly disagree. तो अगर ये ऐसे आता है तो आप इसको 4 तरीकों से लिख सकते हो. यू कैन कंप्लीटली एग्री, यू कैन कंप्लीटली डिसएग्री, यू कैन मोस्टली एग्री और यू कैन मोस्टली डिसएग्री. अगर आप मोस्टली एग्री करते हैं या मोस्टली डिसएग्री करते हैं तो 4 से 5 पैराग्राफ लिख सकते हैं. बच्चे काफी ऐसा पूछते हैं कि सर इस टाइप ऑफ ऐसे में क्या करें, तो मेरी हर वक्त यही सजेशन रहता है कि इसको आप कंप्लीटली एग्री करेंगे या फिर कंप्लीटली डिसएग्री करेंगे तो इट विल बिकम मच मोर इजियर. when you completely agree or when you completely disagree, then you don't need to write on the other side of the essay. आपने जो ऐसे के जिस पॉइंट को आपने एग्री किया है उसी पॉइंट के 2 रीजंस बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ में 2, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 2, और बस खत्म कर दो. यू डोंट नीड टू राइट ऑन द अदर साइड. यही एक ऐसे टाइप है जहां पे आपको ये एक एग्जैक्ट लग्जरी मिलती है कि आपको दूसरे साइड लिखने की जरूरत नहीं है. ज्यादातर केसेस में आपको दोनों तरफ लिखना पड़ता है, जैसे कि डिस्कशन वाला ऐसे उसमें दोनों तरफ लिखना पड़ता है. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों लिखने पड़ते हैं. प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम भी लिखना पड़ता है, सॉल्यूशन भी लिखना पड़ता है. तो ज्यादातर केसेस में यू नीड टू राइट ऑन बोथ द साइड्स. यही एक ऐसे टाइप है जहां पे आप चाहो, अगर आप कंप्लीटली एग्री या कंप्लीटली डिसएग्री करते हो तो इंट्रोडक्शन लिखिए. अगर आपने कोई चीज को कंप्लीटली एग्री किया है तो रीजन नंबर 1 व्हाई यू कंप्लीटली एग्री, बॉडी पैराग्राफ 2 में रीजन नंबर 2 व्हाई यू कंप्लीटली एग्री, एंड फाइनली द कंक्लूजन. सो दिस गिव्स यू द लग्जरी एंड द लिबर्टी नॉट टू राइट ऑन द अदर साइड. सो ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है. अगर आप मोस्टली एग्री या मोस्टली डिसएग्री करते हैं तो यू मे राइट 4 to 5 पैराग्राफ्स, तो आपको दोनों तरफ लिखना जरूरी है. वो उस चीज का ध्यान रखें आप. Okay, any questions, any doubts up to this point of time, students? I have, sir. Yeah, Kruti, tell me. If we write in mostly agree or mostly disagree, then we can write more points. Yeah, you can write more points. Yeah, it's absolutely Yes. right. But then see, what would happen? I'm not saying I'm against you people writing mostly agree or mostly disagree. मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि आप अगर कंप्लीटली एग्री करते हो तो थोड़ा सा आसान हो जाता है एग्जामिनर को समझने के लिए कि आप किस तरफ हो. मोस्टली एग्री में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ द स्टूडेंट इज नॉट यूटिलाइजिंग प्रॉपर डिस्कोर्स मार्कर्स,
जैसे कि कनेक्टिव्स का इस्तेमाल ठीक से नहीं करता तो इट बिकम समटाइम्स डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर कि ये बंदा किस तरफ जा रहा है। तो वापस मैं कहना चाहूंगा कि मोस्टली एग्री मोस्टली डिसएग्री लिखना कोई परहेज नहीं है इससे, लेकिन कंप्लीटली एग्री कंप्लीटली डिसएग्री लिखना थोड़ा सा आसान हो जाता है एग्जामिनर के लिए समझना आपके ऐसे को। अंडरस्टूड नाउ श्रुति? Okay. Okay. या सो मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, इसको रीड कीजिए। There are number of teachers and organizations that teaches students to write an essay in which you partially agree. This will lead you to write a very confusing essay leading to a very poor score. Please take a note of this. आपने काफी इंस्टीट्यूट्स में ये सिखाया जाता है कि आप इसको पार्शियल एग्री कीजिए। प्लीज भगवान को मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको ऐसी बुद्धि न दे कि आप पार्शियल एग्री करें। सिर्फ कंप्लीटली एग्री कीजिए या मोस्टली एग्री कीजिए। पार्शियल एग्री की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सो आई वुड बी द लास्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट टू आई मीन हेल्प यू आउट टू गो फॉर पार्शियल एग्री। सिर्फ कंप्लीटली एग्री या मोस्टली एग्री करें, पार्शियल एग्री का कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, पहले लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल। Please go ahead. The growing number of overweight people is putting a strain on the healthcare system in an effort to deal with the health issues involved. Some people think that the best way to deal with this problem is to introduce more physical education lesson in the school's curriculum. Curriculum. To what extent do you agree or disagree? तो मैं पहले चाहूंगा कि सारे बच्चे जो है वो इसको ठीक से पढ़े एंड देन आई विल एक्सप्लेन। पहले इसको समझना पड़ेगा। हर वक्त कोई भी ऐसे आता है, एग्जाम में भी आता है, 5 बार पढ़े। कैन यू एक्सप्लेन मी कृति? Growing number of overweight people is putting a strain on the healthcare system in an effort to deal with the health issue. Okay, regarding health issues involved. No, sorry. Pehle, I want somebody to explain me the first line only. I have seen students, reading the essay in a so hurried manner that they write something else. So first thing first, I want everybody to read the essay for at least 4 or 5 times. अगर ये नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। पहले मुझे ये सेंटेंस, पहले सेंटेंस का बताओ, ये क्या मतलब है इसका? And if Kruti, if somebody else is willing to explain me, I want perfect explanation. So if I can unmute somebody. मुझे इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए पूरे ऐसे का। पहले तो मैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यस, कैन यू एक्सप्लेन मी? धवल विल हेल्प मी आउट। चलिए धवल, कृति डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट ही रखना, म्यूट मत करना। मैं धवल को चांस देता हूँ। धवल, कैन यू एक्सप्लेन? Yeah, sure. It's saying like the heavyweight people, right? So it is talking about the heavyweight people. Heavyweight people is a problem of the healthcare system because they are putting a more pressure on the healthcare system because they are dealing with the more health issue. Okay, तो आपका पार्शियली सही है धवल, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। या सो पहले तो ये समझना पड़ेगा, ट्राई टू लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। द ग्रोइंग नंबर ऑफ ओवरवेट पीपल, मोटे आदमी जिनकी तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, मोटे आदमी के लिए दूसरा वर्ड है ओबीस पीपल, इज पुटिंग अ स्ट्रेन। हेल्थ केयर सिस्टम पे स्ट्रेन पड़ता है, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम पे प्रेशर आता है। क्यों प्रेशर आता है? क्योंकि जो मोटे होते हैं उनके हेल्थ इश्यूज होते हैं। देखिए, सिस्टम इन एफर्ट टू डील विद द हेल्थ इश्यूज इन्वॉल्व, क्योंकि जो मोटे आदमी होते हैं उनके हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, मोटे आदमी होते हैं, उनको डायबिटीज कभी कभार होता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, और उनके कारण काफी बीमारियां शायद हो सकती है। तो इस बीमारियों, मोटा आदमी खुद हेल्थ सिस्टम पे स्ट्रेन नहीं पड़ता, मतलब अगर कोई मोटा है तो उससे हेल्थ सिस्टम पे स्ट्रेन नहीं पड़ता, पहले ये समझना पड़ेगा। तो मोटे आदमी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोटापे के कारण जो आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल या तो फिर उसके रिलेटेड बीमारियां जो होती है, उसके कारण जो होता है प्रॉब्लम्स, उससे हेल्थ सिस्टम पे ज्यादा स्ट्रेन होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से स्टूडेंट्स? पता चला?
तो ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर ये क्लैरिटी नहीं होगी तो आप उसको ठीक से लिख ही नहीं पाओगे। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके फाइन। नाउ पहला क्या है कि मोटा आदमी जो होता है उसके लिए जो हेल्थ इश्यूज उनके होते हैं, उनके लिए हेल्थ सिस्टम पे ज्यादा स्ट्रेन होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कोरोना वायरस में काफी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई थी, इसके लिए हेल्थ सिस्टम में स्ट्रेन हुआ था। Some people think that the best way to deal with this problem is to introduce more physical education lessons in the school curriculum. काफी लोग ऐसा मानते हैं कि बेस्ट इसके लिए इस प्रॉब्लम जो है उसको डील करने के लिए सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि आप फिजिकल एजुकेशन लेसन्स को अपने स्कूल करिकुलम में दाखला दो। मतलब छोटा अगर बच्चा है दूसरे तीसरे चौथे में पढ़ता है तो उससे पहले ही स्टैंडर्ड से उसके स्कूल करिकुलम में फिजिकल एजुकेशन डाल दो। उससे क्या होगा कि वो मोटा कम होगा और उसके कारण फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इश्यूज हेल्थ केयर सिस्टम पे स्ट्रेन भी कम पड़ेगा। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? आप इस चीज से किस हद तक सहमत हो? तो पहले ये समझना पड़ेगा कौन सी चीज से। ये चीज के क्या हम फिजिकल एजुकेशन डालें स्कूल करिकुलम में ताकि मोटापा जो मोटा आदमी है उसके लिए जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे हेल्थ केयर सिस्टम को कुछ कम किया है, उस पर स्ट्रेन कम पड़े। तो क्या हम ये फिजिकल एजुकेशन वाली चीज को मानते हैं? आप इस चीज से सहमत हो या नहीं हो? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हैव यू अंडरस्टूड द फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन नहीं पड़ेगा पता तो मजा नहीं आएगा। क्लियर? अब क्या करना है? अगर फर्ज करो मैं इस चीज से पूरा सहमत हूं, पहले ये समझना पड़ेगा। अगर मैं ये चीज से सहमत हूं कि हाँ ये तरीका बिल्कुल नायाब है कि हम लोग अगर स्कूल करिकुलम में अगर फिजिकल एजुकेशन डाले, तो आप अगर इस चीज से सहमत हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल बी राइटिंग द एसे इन दिस वे। यू आर गोइंग टू राइट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। इन बॉडी पैरा 1 क्या लिखोगे? You are going to write the advantage of having a physical education in the school curriculum, उसका पहला एडवांटेज। और बॉडी पैराग्राफ 2 में उसका दूसरा एडवांटेज कि अगर फिजिकल एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में लाया जाए तो आपको हर वक्त ये लिंक करना पड़ेगा। ये काफी बच्चे भटक जाते हैं, ऐसे में क्या लिखते हैं, अच्छा इंग्लिश होता है लेकिन भटक जाते हैं। आपको हर बार ये बॉडी पैराग्राफ में ये प्रूव करना पड़ेगा, अगर आप इस चीज से एग्री करते हो तो, कि कैसे फिजिकल एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में डाले तो उससे फायदा क्या होता है। इज इट गेटिंग क्लियर नाउ? अंडरस्टूड एवरीबॉडी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को 5.5 बैंड मिल जाते हैं, उसका कारण ही ये है क्योंकि दे आर नॉट एबल टू लिंक प्रॉपर्ली इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी गुड इंग्लिश। अंडरस्टूड? ओके चलिए कृति अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द, ये आपका फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट हम लोग सबको देते हैं, सो मैं चाहूंगा अगर किसी के पास नहीं है तो ये फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले सकता है। याद रहे कि अगर आप इसको कंप्लीटली एग्री करते हो तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी पैराग्राफ 1, body paragraph 2 and conclusion. You don't need to write this paragraph. This paragraph is only needed. This paragraph is only needed if you are writing the essay. अगर आप मोस्टली एग्री करते हो तो बाकी आपको यही 4 पैराग्राफ लिखने हैं जो मैंने टिक किए हैं। Understood everybody? Have you understood the format now? Kruti? Yes. Okay, fine. So let us read. Let us quickly read the essay. चलिए इंट्रोडक्शन को वापस कीजिए और कंक्लूज पहले ऐसे का टॉपिक ले लीजिए, पढ़िए। The growing number of overweight people is putting a strain on the healthcare system in an effort to deal with the health issues involved. Some people think that the best way to deal with this problem is to introduce more physical education lessons in the school curriculum. To what extent do you agree or disagree? Okay, अब इंट्रोडक्शन पढ़िए। Owing to the problems which a growing population of overweight people cause for the healthcare system, some people think that the key of solving this issue is to have more sport and exercise in schools. Okay. In my opinion, I completely agree that this is the best way to tackle the issue of deteriorating public health in relation to weight. तो अगर आप देख सकते हो पहली जो लाइन, 2 ही लाइन है इंट्रोडक्शन में, पहली जो लाइन है उसमें हमने जो ऊपर जो लाइन है उसका पैराफ्रेजिंग किया है
and in the second line I am very straightforwardly writing that I completely agree. So it means that मेरे ऐसे में कहीं पे भी contrasting connectives नहीं आएंगे. Paragraph के start में it is going to be very simple format. Introduction. In body paragraph 1 I am going to write how physical education helps. The reason number 1. In body paragraph 2 how physical education at the earlier part of the school helps. Reason number 2. And finally conclusion. आप देख सकते हो very straightforwardly I have mentioned I completely agree and this is what you need to do. Understood? Okay, आगे बढ़ते हैं. Body paragraph 1, please. Firstly, dealing with the issues surrounding Obesity. obesity and weight problem is best solved by taking a long-term approach and introducing more sport and exercise in schools. अब इसको explain करो. This method. This Yes. method will ensure that the next generation will be healthier and will not have such health problems. At the moment, the average child in the West does sport possibly twice a week, which is not enough to Counteract. counteract their otherwise sedentary lifestyle. Hence, by incorporating more sports classes into the curriculum as well as encouraging extracurricular sports activities, they will undoubtedly become fitter and more active. Fitter and more active. अगर आप इसको गौर Fitter. से देखेंगे तो हम फर्स्टली से स्टार्ट किया. वी स्टार्टेड विद फर्स्टली. तो हमने ऐसा लिखा कि स्पोर्ट और एक्सरसाइज को स्कूल्स में मिलना चाहिए जगह. इससे हमने एक्सप्लेन किया दिस मेथड से क्या होगा कि नई जनरेशन जो आएगी वो हेल्थियर बनेगी. अब जो मोटे हो चुके हैं उसका तो हम शायद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब जो बच्चे हैं उसको मोटा होने से रोक सकते हैं. और इससे एग्जाम्पल भी दिया कि वेस्ट में बच्चे वीक में 2 ही बार स्पोर्ट्स करते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इससे क्या होगा कि बच्चे ज्यादा तरीके से स्पोर्ट्स खेल पाएंगे और उससे आने वाली जो पीढ़ी होगी इट इज गोइंग टू बी बिकम फिटर एंड मोर एक्टिव. तो रीजन नंबर 1 दिया हमने कि भाई ये करिकुलम लेने से बच्चे फिट होना चालू हो जाएंगे. अब बॉडी पैराग्राफ 2 में उसी चीज का रीजन नंबर 2 पढ़िए. Another point to consider is that having more sports lessons for children in schools will probably result in children developing an interest in exercise, which might filter through to other members of their family and have a longer lasting effect. In other words, parents with sporty children are more likely to get involved in sport as a way of encouraging their children. By both parents and children being involved, it will ensure that children grow up to incorporate sport into their daily lives. This is certainly a natural and lasting way to improve public health. पहले पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ 1 था, उसमें हमने ऐसा लिखा कि बच्चों को फायदा होगा. दूसरे पैराग्राफ में उसी चीज डोंट गिव अ सेकेंडरी, मतलब दूसरा पॉइंट मत लो, वही पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि दूसरा फायदा ये है कि अगर बच्चे खेलेंगे तो उसको देखते देखते पेरेंट्स भी खेलना चालू करेंगे और पेरेंट्स भी खेलेंगे, बच्चे भी खेलेंगे, उससे सोसाइटी हेल्दी बनेगी और उससे ओवरऑल पब्लिक हेल्थ का इजाफा होगा. हैव यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि अनदर पॉइंट के बदले आप सेकेंडली का भी इस्तेमाल कर सकते हो व्हाइल स्टार्टिंग एन एसे. सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन. अनदर पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, सेकेंडली से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये कंप्लीटली एग्री है तो आप however, although, even though, nonetheless, nevertheless, in spite of, despite, on the contrary ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टिव्स है. तो याद रहे जब आप कंप्लीटली एग्री और कंप्लीटली डिसएग्री करते हो तो इंट्रोडक्शन बाद में फर्स्टली, बॉडी पैराग्राफ 2 में नेक्स्ट या सेकंडली, या तो फिर यहाँ पे जैसे लिखा है अनदर पॉइंट टू कंसिडर, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे. कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टिव से आपका पैसेज स्टार्ट नहीं होगा. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? श्रुति अंडरस्टूड? यू आर द वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स. ओके फाइन. Yes. And finally the conclusion. In conclusion, to deal with an increasing population of unfit, overweight people,
changing the lifestyle of the coming generation by introducing sport in schools is the easiest and most effective method to use. वेरी गुड. सो दिस इज अ कंक्लूजन. एक ही लाइन में हमने कंक्लूजन कर दिया. तो इन कंक्लूजन में हमने ऐसा लिखा कि ये जो बढ़ती तादाद जो है अनफिट ओवरवेट पीपल की, उनके लिए बेहतर ये होगा कि हम लाइफस्टाइल चेंज करें. कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग स्पोर्ट इन स्कूल्स. इससे काफी इफेक्टिवली हम इस चीज जो है उसका कर सकेंगे. वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस. ये पूरा ऐसे आपके सामने है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस so that you can refer this in the future. Please take a screenshot of this and let me know when it is done. हो गया? Nakruti, is it done? Yes, done. Okay, fine. Thank you so much. So I was thinking of taking reading, but it is almost 8:05 हो चुके हैं. So I mean थोड़ा सा grammar ज़्यादा चला. I hope you enjoyed the session. I'm ending this session. I'll be taking the recording of this session. In case if you want to refer. Any questions? Any doubts? I hope you enjoyed the session. First of all, did you enjoy? Yes. Thank you, Kruti. Yeah. Thank you, students. So this Thank you. Yeah. Thank you so much. Okay, students. Thank you so much. Thanks for being here. Thank you, for being the part of the session. And if you have got any doubts, any queries, you can always talk to me tomorrow. I'll be more than happy to help. Okay. Thank you so much, students. Thank you so much. Bye. Bye. Thank you, sir. Thank you, Kruti.